Students of class 11th. Today I would like to discuss with you a topic of grammar, that is tense, because in this unit test you will be put question from the topic tense. Already you have done in your lower classes about the tense. It's not a new thing for English students, but even then, when we take a thing from examination point of view, then we have to take the review of it. And if you have forgotten some basic rules, then that may be remind to you. Keeping this thing in mind, I would like to revive all these things to you, and then we will solve a few exercises that may be asked to know about that. Based on that, may be asked to you in exam. As you know, your paper will be objective type or one word answer may be there. So options will be given in grammar topic also, and keeping this thing in mind, we are doing this exercise. And before exercise, I want to review the topic. First of all, for doing tenses, I would like to discuss with you the parts of speech. You should know what are parts of speech. Words are divided into kinds of classes and called parts, that is called parts of speech according to the use, that is according to the work they do in a sentence. कि वर्ड जो है सेंटेंस में क्या काम करते हैं, उनका यूज़ क्या है, उसके ऊपर बेस जो है उनका डिवीज़न भी किया हुआ है. और इस कैटेगरी में जो सबसे पहले आता है नाउन. मतलब दीज आर ऑफ 8 टाइप: नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. So first of all, I would like to discuss with you noun. As you already know, what is noun? Naming something. Okay, word used as the noun is maybe of a person, a thing. Name of anything is known as noun. Like Calcutta is on the river Hooghly. ठीक है. And then next comes an adjective. Adjective और adverb में मेजोरिटी टाइम स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड व्हेन वी आर डूइंग फिलअप और आपके जो टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें कई बार आपको ये पर्टिकुलरली एडजेक्टिव की डिफरेंट फॉर्म्स या एडवर्ब की आपको फिल करनी होती है. एट दैट टाइम यू गेट कंफ्यूज्ड. तो वर्ड थिंग, एडजेक्टिव इज अ वर्ड. कौन सा वर्ड होता है? दैट इज यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन. That is used to add something to the meaning of noun. That is known as adjective. Like he is a brave boy. Brave क्या है यहाँ पे? Adjective क्या है? Brave. मतलब boy की जो है हमने क्वालिटी बताई है कि he is a brave boy. और there are 20 boys in this class. What is adjective here? 20. कि how many boys are there? 20. So in this way, adjective जो होता है word that use something to the meaning of a noun. फिर है pronoun. Naturally pronoun क्या होते हैं? The word used instead of noun. मतलब कई बार sentences में हमें एक ही जो noun को बार बार repeat करने की जगह हम उसकी जगह जो है pronoun भी use कर सकते हैं, and that give more grace to the जो भी आपका सेंटेंस होता है. जैसे जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. अगर हम यहाँ पे फिर से लिखें जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, तो इसके बजाय हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? प्रोनाउन, बिकॉज ही इज इल. द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम. अगर आप ये बार बार लिखो द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट बुक्स, इट डजंट लुक नाइस. वेयर यू लेफ्ट देम. देन ए वर्ब क्या होता है? ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और ए थिंग. अ वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग. मतलब कोई भी काम जो चल रहा होता है, ठीक है, अबाउट उसके बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, तो दैट इज ए वर्ब. क्रिया भी बोलते हैं इसको हिंदी में. तो द गर्ल रॉट ए लेटर टू हर कजन.
कैलकाटा इज ए बिग सिटी, तो यहाँ पे इज जो है क्या है, वर्ब। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, यहाँ पे वर्ब क्या है, आर। ठीक है, तो ये जो है वर्ब के डिफरेंट फॉर्म में हम यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब जो है दैट इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, किसी भी मतलब वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की जो है उसके बारे में उसकी क्वालिटी बताता है, तो दैट इज व्हाट, एडवर्ब। ही वर्कड द सम क्विकली, क्विकली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये क्या है, यहाँ पे एडवर्ब क्या है, ब्यूटीफुल। शी pronounced the word quite correctly, quite is here adverb. So these are the words, we have taken some examples. तो ये जो है that add something to the meaning of a verb and adjective, इनके जो है meaning में they add something, ठीक है। A preposition, preposition is a word used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। कि जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, प्रेपोजिशन क्या है कि वर्ड ये यूज होते हैं किसके साथ, नाउन और प्रोनाउन के साथ, और ये जो है प्रेपोजिशन ये उसके साथ रहती है एंड टू से समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए काउ इन द गार्डन, यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है, इन, मतलब दैट टेल समथिंग अबाउट द काउ। एंड द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, प्रेपोजिशन इज व्हाट, ऑफ, कि शी इज फॉन्ड ऑफ, उसको शौक है। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर ए ट्री, यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है, अंडर। देन नेक्स्ट कम्स कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, यूज टू ज्वाइन ए वर्ड, यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, दैट इज नोन एज कंजक्शन। रमा एंड हरी आर कजन्स, तो यहाँ पे कंजक्शन क्या है, एंड। 2 and 2 make 4, again and। I ran fast but missed the train, but क्या है यहाँ पे, कंजक्शन। So it is a word that join words or sentences. Then an interjection. Interjection is a word which expresses some sudden feeling, कि जो तुरंत प्रभाव से कुछ आप महसूस करते हो उसके बारे में बताता है, जैसे हुर्रा, वी हैव वन द गेम। हुर्रा क्या है यहाँ पे, इंटरजेक्शन। अलोस, शी इज डेड, तो ये जो तुरंत आपको वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, तो ये सब क्या है, दीज आर इंटरजेक्शन। देन ये जो है हमने यहाँ तक आई हैव जस्ट डन कि पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट यू शुड नो, एंड फॉर मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रामर, आपको ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए सभी बच्चों को। उसके बाद हम आते हैं टेंसेस पे। टेंसेस जो है आप सब बच्चों को पता है ऑलरेडी कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, ऑलरेडी यू नो, आपके माइंड में आ ही जाना चाहिए कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे टेंस, द वर्ड टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा है इसके लिए, टेम्पस, विच मीन्स टाइम, मतलब ये टेंस जो है दैट इज बेस्ड ऑन टाइम। ए वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन बाय चेंजिंग इज फॉर्म। तो टेंस जो है लैटिन वर्ड टेम्पस से बना है और विच मीन्स टाइम। अ वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन बाय चेंजिंग इज फॉर्म। नाउ ये जो है किस टाइम कब क्या हुआ इसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो बेस्ड ऑन टाइम द वर्ब टेंसेस मे बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम। और टाइम फ्रेम क्या कहते हैं, प्रेजेंट में था, पास्ट में और फ्यूचर में। तो दीज आर ऑल 3 टाइप्स। तो बेस्ड ऑन
time frame. These are of 3 type. And present tense, इसको एक्सप्लेन करने की आई डोंट फील कि कोई ज़रूरत है कि जो भी काम चल रहा होता है प्रेजेंट में, एक्सपीरियंस अनचेंजिंग, रिपीटेड और रिकॉग्नाइज्ड एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली which can represent a widespread truth for the present time. Past express an action or situation that was started and finished in the past, जो finish भी हो चुका है, ठीक है. Future tense expresses an action or situation that will occur in the future. तो ये I don't say about 80% स्टूडेंट्स को ये बातें क्लियर है तो बाकी रिमेनिंग 20 को भी, बट दे डोंट केयर. और इसी वजह से मैं आपको ये रिमाइंड करवा रही हूँ कि व्हाट इज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. बाकी 11th पे आने के बाद हमें सीधा ही जो है एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए थी, बट स्टिल आई फील कि द थिंग्स मस्ट बी वेरी मच क्लियर. और सेकेंडली आपको जो इंग्लिश का बेस जो है ना, ये नींव है, टेंसेस आपकी नींव है, और नींव मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है फॉर टू राइट गुड इंग्लिश. लिखने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, और ग्रामेटिकली एक्यूरेट लिखने के लिए आपको जो है टेंसेस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है. दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग, और ये बार बार रिपीट हम नहीं करेंगे. कीप दिस थिंग इन माइंड. वर्ब टेंस में बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट, रेफर्स टू द नेचर ऑफ द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब. तो नेचर ऑफ एक्शन जो वर्ब के अकॉर्डिंग है वो कितने टाइप का होता है, इंडेफिनिट और सिंपल. ये किसके ऊपर बेस्ड है, टाइम पे बेस्ड. कितना है, 3 टाइप का. अगर हम इसको लेते हैं नेचर ऑफ द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब, वर्ब के अकॉर्डिंग अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कौन सा है, इंडेफिनिट और सिंपल, कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और कंप्लीट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ये किसके ऊपर बेस्ड है, the nature and refers to the nature and action described by the verb. So it is of 4 type. Then indefinite tense. The 3 indefinite tense. Simple tense describes an action, not state whether the action is finished. मतलब indefinite tense में आपको simply दिया होगा और उसमें ये पता नहीं चलता है कि आपका action जो लिया गया वो complete हुआ है या नहीं. Continuous tense, incomplete tense, tenses और progressive tenses describe an unfinished action. ये भी unfinished action बता रहा है जो चल रहा है. सीता इज सिंगिंग, राम इज रनिंग. अब पता नहीं उन्होंने अपना एक्शन पूरा किया है कि नहीं, बट दे आर डूइंग. परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस क्या कहते हैं, द 3 complete tenses और perfect tenses describe a finished action. ये बिल्कुल मतलब फिनिश्ड वर्क को आपको परफेक्ट टेंस बताता है कि दिस वर्क हैज़ बीन डन. देन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, टू कंबाइन द कंप्लीट टेंसेस एंड इनकम्प्लीट टेंसेस टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड. कि जो काम शुरू हुआ वो चला और फिर वो फिनिश हो गया. तो दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूस tense. Then there are 12 verb tenses, pauses of tenses. These are present, past and future. तो ये जो है 12 कौन कौन से हैं, प्रेजेंट भी 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, past perfect and perfect continuous. Future indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. These are of 12 types. जो tenses है ये जो है कितने हो गए टोटल, अगर हम इसको देखें तो these are of 12 types. Then here is a list of rules. अब आपके जो रूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में सिंपल फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस. ठीक है. प्रोग्रेसिव हो तो एम, इज, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूस में. परफेक्ट फॉर्म में हो तो हैव लगेगा प्रेजेंट में भी प्लस
हैज़ और हैव डिपेंड अपॉन सिंगुलर और प्लूरल प्लस थर्ड फॉर्म, एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म में हो हैव हैज़ बीन लगेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. Is it clear? First form plus s और es, am is are प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. फिर अगर परफेक्ट है तो हैव हैज़ और थर्ड फॉर्म, और प्रोग्रेसिव फॉर्म है तो हैव हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एंड ing. पास्ट टेंस में क्या आता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है. देन वॉज, प्रोग्रेसिव में हो तो वॉज पर वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. ing के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी. कीप दिस थिंग इन माइंड. हैड परफेक्ट में हैड लगेगा पास्ट में प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ठीक है. तो वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगेगा पास्ट में. अगर हैड का यूज है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है परफेक्ट फॉर्म में, तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट. देन फ्यूचर में बिल्कुल डिफरेंट, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म इन सिंपल फॉर्म. फिर प्रोग्रेसिव में विल बी शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. परफेक्ट में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है. फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव plus been plus first form plus ing. So these rule you have done already. This is just to remind you. Then present tense जो है present indefinite, present continuous, present perfect, perfect continuous. तो present continuous जो है simple present indefinite describe an action or event or condition that is occurring in the present. present moment पे जो भी condition एक्शन हो रहा है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल आई प्ले, ही शी प्लेज. तो इसमें जो है ही शी के साथ क्या लगेगा? एस और ईएस. अगर क्वेश्चन फॉर्म हो डू और डस. तो ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. देन प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस एम्फेसाइज द कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ एन एक्ट, इवेंट और कंडीशन के कंटिन्यू चल रहा है कोई भी एक्शन. लाइक आई एम प्लेइंग, ही शी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग. सो दिस शोज प्रेजेंट कंटिन्यूस. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इनटू द प्रेजेंट. पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है, एंड हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड. आई हैव प्लेड, ही शी हैज प्लेड. तो ये जो क्या शो कर रहा है कि पास्ट में शुरू हुआ, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में शुरू हुआ, चला और फिर ख़त्म भी हो गया. आई हैव प्लेड, मतलब अभी जस्ट आपने अपना काम फिनिश किया. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. कि द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन दैट हैज बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट. आई, यू, I oblique you have been playing, he she has been playing, मतलब वो खेल रहे थे. You have informed. पास्ट में ये 4 फॉर्म्स है. फर्स्ट फॉर्म क्या कह रही है? इंडेफिनेट. कि द सिंपल पास्ट इज एंड डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट अकर्ड इन द पास्ट. लाइक आई प्लेड, ही शी प्लेड. नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस. यूज टू डिस्क्राइब एक्शन ऑनगोइंग इन पास्ट, कि जो पास्ट में एक्शन चल रहा था उसको डिस्क्राइब कर रहा है. लाइक आई वॉज प्लेइंग, ही शी वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग. देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. यूज टू डिस्क्राइब और यूज टू रेफर टू एक्शंस दैट टुक प्लेस एंड वर कंप्लीटेड इन द पास्ट. जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ वो खत्म भी हो गया. जैसे आई हैड प्लेड, ही शी हैड प्लेड. Then these are the forms of future. In future, simple future is used to refer to action that will take place after the act of speaking or writing. जो एक्ट चल रहा है उसके बाद में ये काम होगा. I shall play, he she will play. After completing homework, I shall play, she will also play. तो ये जो है आप फ्यूचर के बारे में बता रहे हो कि नेक्स्ट आपने क्या करना है. फ्यूचर कंटिन्यूस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन
और in the future progressive is used to refer to continuing action that will occur in future. I shall be playing, कि when you will come I shall be playing, he she will be playing, at 10 o'clock he she will be playing. तो these are the action जो future में चल रहा होगा, मतलब that you imagine. And future perfect continuous tense is used to indicate a continuing action, कि continuing action that will be completed at some specified time in future. फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम पे ये एक्शन पूरा होगा. आई शेल हैव बीन प्लेइंग, ही शी विल हैव बीन प्लेइंग. नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कि फ्यूचर परफेक्ट इज रेफर टू एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड sometime in the future before another action will take place. कि I shall have played before Ram come. ठीक है. He she will have played. ठीक है. तो before 5 o'clock भी लिख सकते हो. तो ये जो है कि आपने फ्यूचर में ये काम पूरा कर चुका होगा, लेकिन कंटिन्यूस मतलब फ्यूचर उसके साथ चलेगा. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू इंडिकेट ए कॉन्टिन्यूइंग एक्शन, कि जो फ्यूचर में चल रहा होगा, that will be completed at some specified time in future. I shall have been playing, he she will have been playing, मतलब in that particular time. If you will come tomorrow at 9 AM, I shall have been playing. ठीक है. तो ये जो है, here is a list of examples of the tenses and their definitions. Simple, progressive, perfect, मतलब आई प्ले, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, आई हैव बीन प्लेइंग. इसी ढंग से पास्ट में हो तो आई प्लेड, आई वॉज प्लेइंग, आई हैड प्लेड, आई हैड बीन प्लेइंग. अगर फ्यूचर हो तो आई शैल प्ले, आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल हैव प्लेड, आई शैल हैव बीन प्लेड. सो these are the various types of the tenses that we are repeated. Now here is an exercise based on this. आपको जो है मैंने कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं, आपने इनको सॉल्व करना है. ठीक है. और एवरी मंडे सैली ड्राइव डैश हर काइंड किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस. एवरी मंडे सैली ड्राइव हर किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस. तो क्या आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? You have to tell. Usually I work as a secretary at ABT, but the summer that is why I am in Paris. Be quiet John. Sleep. आपने ये सारी एक्सरसाइज जो है सॉल्व करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी करने हैं. ठीक है. एंड इसमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आपको एग्जाम में ऐसे ऑप्शन भी आ सकते हैं. दीज एक्सरसाइज यू हैव टू सॉल्व and then I would like to discuss or you send me the answers. ठीक है. आप मुझे आंसर्स भेजेंगे इनके. ठीक है. ये सारे बच्चे जो ये सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और मल्टीपल चॉइस के कहीं से भी क्वेश्चंस मिलते हो आपको, आप उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.